बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि अमित शाह चाहे कितने भी झूठ क्यों न बोलें, अवाम बीआरएस को वोट देंगे और बीजेपी को मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि 110 हलकों में जाफरानी जमात के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमित शाह को उन जमातों के बारे में इतराज़ करने का, सवाल करने का हक़ नहीं पहुँचता जो अवाम के आशीर्वाद से कामयाबी हासिल कर रही हैं। उन्होंने मजलिस के हाथ में बीआरएस के स्टीयरिंग होने से मुताल्लिक़ अमित शाह के रिमार्क्स पर भी एतराज़ किया। అమిత్ షాజీ గౌరవ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు ఈరోజు తెలంగాణకు వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి తన అబద్ధాల ప్రచారాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి వల్లవేసే ప్రయత్నం చేశారు. దురదృష్టకరం ఏంటంటే అమిత్ షా గారు సరిగ్గా 5 ఏళ్ల కిందట ఆదిలాబాద్, ఈరోజు ఏ ఆదిలాబాద్లోనైతే ప్రసంగించారో అదే ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీదకి వచ్చి మీరు కేంద్రంలో మా సర్కార్ వస్తే, మా గవర్నమెంట్ వస్తే ఇక్కడ ఉన్న సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిక్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెరిపిస్తాను అని మాటిచ్చారు. ఇవాళ ఏం మొహం పెట్టుకుని అమిత్ షా గారు తెలంగాణకు వచ్చారో తెలియదు. కానీ నిజంగా కూడా ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ ప్రజల యొక్క దురదృష్టం. ఇట్లాంటి నాయకత్వం ఇవాళ కేంద్రంలో ఉండడం, ఇట్లాంటి మంత్రులు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండడం నిజంగా కూడా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చే సత్తా లేదు. పైపెచ్చు ఈరోజు వచ్చి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద ఒక అభియోగం కొత్తగా, మీరు ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు, పట్టించుకోలేదు కాబట్టి యూనివర్సిటీ పెట్టలేదు. ఇవాళ వాస్తవం ఏంటి అంటే ఒక్కటంటే ఒక్క విద్యా సంస్థను కూడా తెలంగాణకి ఇవ్వకుండా దుర్మార్గమైన పద్ధతిలో ప్రవర్తించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఒక్కటంటే ఒక్క నవోదయ పాఠశాల ఇవ్వలేదు, ఒక్కటంటే ఒక్క కేజీబీవీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వలేదు, ఒక్కటంటే ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ లేదు, ఒక్కటంటే ఒక్క నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు, ఒక్కటంటే ఒక్క ఐఐఎం ఇవ్వలేదు, ఒక్కటంటే ఒక్క ఐసర్ ఇవ్వలేదు, అడిగిన ఎన్ఐడి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇట్లాంటి ఎన్నో విద్యా సంస్థలు ఇచ్చే అవకాశం ఉండగా ఏది ఇవ్వకుండా ఇవాళ వచ్చి నోరు బారేసుకొని కేసీఆర్ గారిని ఏదో బదనాం చేద్దామంటే ఇవాళ బీజేపీని నమ్మే పరిస్థితిలో తెలంగాణ ప్రజలు లేరు. మాట్లాడితే కుటుంబ పాలన, ఇవాళ అమిత్ షా గారు మాట్లాడితే జనమంతా నవ్వుతా ఉన్నారు. ఒకవైపు వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ జరుగుతూ ఉంది. బీసీసీఐ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్న జయషా గారు మరి ఏ వరల్డ్ కప్ సాధించారు, ఎక్కడ కోచింగ్ చేశారు, ఎక్కడ అద్భుతమైన క్రీడా పాఠవాన్ని ప్రదర్శించారో తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. పరివారవాదం అని ఇంకోటని వారు మాట్లాడితే పరిహసిస్తున్నారు ప్రజలు. కాబట్టి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడే నాయకులను కానీ, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడే పార్టీలను కానీ. बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि रियासत में बीआरएस की नहीं बल्कि बीसी हुकूमत है। उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाले पहले वज़ीर आला केसीआर हैं। रियासत ही नहीं, मुल्क में बीसी तबके की आबादी मालूम करने मरदमशुमारी की ज़रूरत है। उन्होंने इंतखाबात के पेश नज़र बीसी तबके की मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ राहुल गांधी के मुतालबे को मज़हक़ खेज़ करार दिया। शहर हैदराबाद में बहुजन समाज पार्टी का इंतखाबी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के कोऑर्डिनेटर RS प्रवीण कुमार ने वज़ीर आईटी तारक रामाराव पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात के बाद बहुजन हुक्मरानी का रियासत में आगाज़ होगा। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ORR लीज के अलावा कोकापेट और दीगर अराजियात के हराज के मामलात का तफसीली और असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जो भी तक़र्रुरात किए गए हैं उन तक़र्रुरात को वापस लिया जाएगा और उन्हें अदा करदा तनख्वाहें वापस ली जाएंगी। बीआरएस की तायीद करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। దొరికినోనికల్లా ఏదో పదవి ఇస్తున్నాడు, తన్నినోనికల్లా ఏదో చైర్మన్ ఇస్తున్నాడు, ఒంగబెట్టి గుద్దినోనికల్లా ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ ఆయన ప్రభుత్వం రద్దు అయిపోయింది. తీసేసిన తహసీల్దార్లకు అన్ని ఆర్డర్లు ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు. 2 ఏళ్లకు 3 ఏళ్లకు 5 ఏళ్లకు నియమిస్తుడు. మీ తాత జాగిరా అయిపోయింది నీ పదవి. ఇప్పుడు కొంతమందిని చైర్మన్లను వేసిండు, కొంతమందికి వేరే వేరే హోదాలు ఇచ్చిండు. అవి చెల్లవు.
గత 6 నెలల నుండి కేసీఆర్ గారు నియమించిన రాజకీయపరమైన నియామకాలను అన్నిటిని కూడా రద్దు చేయడమే కాకుండా ఈ నియామకాల వల్ల వాళ్ళకి ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరుంటే జీతభత్యాల నుంచి అన్నిటిని వాళ్ళ నుంచి రికవరీ చేస్తాము. ఇది కంప్లీట్గా అధికార దుర్వినియోగము. ఈ అధికార దుర్వినియోగాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు. రెండవది, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లాంటి లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తిని అమ్ముకొని ఆ నిధులను కాజేసి దాన్ని అప్పనంగా మింగేసిండు. గత 6 నెలల నుంచి ఏమేమి టెండర్లు పిలిచిండో, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కావచ్చు, కోకాపేట భూములు కావచ్చు, నిన్నగాక మన పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల మీద టెండర్లు కావచ్చు. कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर जाना रेड्डी को हाईकमान ने अहम जिम्मेदारी दी है। पार्टी लीडरों में मसालिहत और नशिस्तों के एडजस्टमेंट के मामले में 4 रुकनी कमेटी के सदर जाना रेड्डी बनाए गए हैं। इस कमेटी में जाना रेड्डी के बशमूल मानिकराव ठाकरे, दीपदास मुंशी, मीनाक्षी नटराजन शामिल हैं। टिकटों के ऐलान के बाद नाराज कायदीन को मनाने की जिम्मेदारी कमेटी के हवाले की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने एशियन गेम्स में मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने एशियन गेम्स में शिरकत करने वाले हिंदुस्तानी एथलीट्स के दस्ते से खिताब करते हुए कहा कि हमारी ख़वातीन खिलाड़ियों ने जिस जज्बे के साथ परफॉर्म किया है उससे हिंदुस्तान की बेटियों की सलाहियतों का पता चलता है। एशियन गेम्स में मुकम्मल तमगों में से निस्फ से ज़्यादा हमारी ख़वातीन एथलीट्स ने जीते हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, वो जैसे तय करके आई हैं। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है और यही नए भारत की स्पिरिट है। रामतपुर झील में आलूदगी और गैर मुजाज कब्जों के मसले पर कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रॉस हाईकोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि 2016 FTL हुदूद पर हमडा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इस झील के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएंगे। अदालत ने झील के इलाकों में कब्ज़ों और कचरे की तफसीलात आइंदा समात में पेश करने की उन्हें हिदायत दी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 के इम्तिहानात को मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुलतवी करने का ऐलान किया है, जो 2 और 3 नवंबर को होने वाले थे। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग 30 नवंबर को होगी। पोलिंग और इम्तिहानात के लिए पुलिस और दीगर महकमे जात के अमले को बड़े पैमाने पर मुख्तस करने में मुश्किलात का खदशा है, जिसके पेश नज़र इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं।
सीरियाल को रेवेन्यू डिवीजन करार देने का मुतालबा करते हुए जेएसी ने बंद मनाया। सिद्दीपेट के 4 मंडलों में इस बंद का एहतमाम किया गया। अवामी तंजीमों, ताजिरों की तंजीमों और तिजारती इदारों ने इस बंद की हिमायत की। जेएसी ने इस मौके पर कहा कि इस मामले में जद्दोजहद के बावजूद हुकूमत ने इस मसले को नजरअंदाज कर दिया। शहर हैदराबाद में मौसम सरमा की आमद के बावजूद दिन के औकात में धूप की तमाज़त और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि रियासत के बाद अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल महसूस की जा रही है, जहां दिन के औकात में शदीद गर्मी हो रही है और मौसम गर्मा में रिकॉर्ड होने वाला दर्ज हरारत हालिया दिनों में देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर हैदराबाद के सीताफल मंडी में मंगल को सबसे ज्यादा 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। मौजूदारों ने बताया कि यही सूरत हाल अक्टूबर के ख़त्म तक शहर और बाज़ अजला में देखी जाएगी। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों और बाज़ अजला में दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बॉयस्टाउन स्कूल मामले में गिरफ्तार 12 मुस्लिम नौजवानों में से 9 मुस्लिम नौजवानों को मजलिस की नुमाइंदगी पर रिहा कर दिया गया। बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने मीडिया को बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और DCP साउथ जोन से नुमाइंदगी के नतीजे में 9 नौजवानों को रिहा कर दिया गया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 2 दिन पहले बॉयस्टाउन स्कूल करने जो गड़बड़ हुई थी और गड़बड़ के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के तहत अपने तकरीबन 12 बच्चों को अरेस्ट किया गया था। अल्लाह का फजल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद साउथ जोन DCP से 2 दिन से बराबर लगे हुए थे बातचीत के ज़रिए कि बच्चे बेफजूल है और बच्चों को इमीडिएटली छोड़ना चाहिए। जो गड़बड़ करना था उन्होंने करे और चले गए। जो मासूम बच्चों को पकड़ा गया था उसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चे पकड़े गए थे। तकरीबन 9 बच्चों को मैं खुद उनके घरों के ऊपर उनके माँ बाप के पास उनके हवाले किया हूँ और उनके माँ बाप से ये कहा भी हूँ मैं कि अपने बच्चों की निगरानी करिए। बच्चे रातों में क्यों बाहर रोडों पे फिरते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए, उनके जो कहाँ पर मूवमेंट हो रहा बच्चों को, वो सारी चीज़ों को नज़र रखना माँ बाप का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जब किसी घर पर परेशानी आ जाती है, किसी के ख़ानदान में परेशानी आ जाती है, तो उस वक्त कोई जमात उस परेशानी के वक्त नहीं रहती है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहती है। हमारा काम है ये। हम इंशाअल्लाह ताला आवाम के वास्ते थे, आवाम के वास्ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हमेशा, और आवाम के वास्ते ही काम करेंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। शुक्रिया आप तमाम। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले ही बुकिंग से शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक 620 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनों में मुसाफिरीन के हजूम में इजाफे के पेश नज़र ट्रेनों की तादाद में इजाफा मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेनों में
नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। दलित बंधु मसले पर सूर्यापेट जिले के आत्मापुर एस मंडल में कशीदगी फैल गई, क्योंकि दलितों ने सरपंच और वार्ड अरकान को मकान में बंद कर दिया। दलित खवातीन ने दलित बंधु स्कीम में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के फंड्स का सरपंच और वार्ड अरकान ने गलत इस्तेमाल किया है। नारकोटिक्स, ड्रग्स और नशीली अशिया के खिलाफ जदोजहद के हिस्से के तौर पर हैदराबाद कस्टम कमिश्नरेट ने 216.69 किलो नशीली अशिया को तलब कर दिया, जो हैदराबाद कस्टम्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जब्त की थी। इन मुनशियात की मालियत 468 करोड़ रुपए बताई जाती है। नाइजीरिया, तंजानिया, जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तानी निजात अफराद से ये नशीली अशिया जब्त की गई थी। अलावा इन तलबशुदा मुनशियात में DRI और हैदराबाद कस्टम्स की जानिब से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात से यहाँ लाई गई मुनशियात शामिल हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में 2 मुसाफिरीन के पास से बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स और सोना जब्त किया। ये मुसाफिरीन कंबोडिया से हैदराबाद पहुंचे थे। एक के पास से 11.6 लाख रुपए मालियत की सिगरेट्स जब्त की गई। मस्कत से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान 18.17 लाख रुपए मालियत की 317 ग्राम वजनी तिलाई चेन जब्त की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।